Good morning and Jai Hind students. Welcome to the sociology class. Till now we have completed 2 chapters from this book, Social Change and Development in India. Today we are going to discuss chapter 3, the story of Indian democracy. This chapter is about the introduction of democracy in India, the history of Constituent Assembly, Panchayati Raj, pressure groups, etc. As you know, we are the part of democratic society. Indian constitution is the part of democracy. But what exactly is the democracy? How did it come into existence? How does it work? Let's find out more about it. The term democracy first appeared in the ancient Greek political and philosophical thought in the city of Athens. The word democracy comes from Greek word demos, which means common people, and kratos, which means rules or strength. So the meaning of democracy is when people have the power to choose their leader. And in the other word, we can say that democracy is the government of the people, by the people and for the people. India became a democratic nation post its independence in the year 1947. Thereafter, the citizens of India were given the right to vote and elect their leaders. India is the world's largest democracy, and democracies fall into 2 basic categories, direct and representative. 2 basic categories are direct and representative. First is direct democracy. Usually the group is small and all the people collectively take equal part in the decision making process. Group is small like tribe, trade union, small country like Switzerland. हिंदी में इसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं, जिसमें सभी नागरिक सारे महत्वपूर्ण नीतिगत फैसलों पर मतदान करते हैं. सभी नागरिकों का मतदान लिया जाता है सभी महत्वपूर्ण नीतिगत फैसलों पर. ठीक है. सेकेंड इज रिप्रेजेंटेटिव. वी इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव्स who take the decisions for us and governs the country. It is opposite to the direct democracy. इसमें पदाधिकारी जनता के किसी समूह के द्वारा चुने जाते हैं. We have representatives at 4 levels. हम 4 levels पे अपने representatives को चुनते हैं. First is Parliament, Central Government. Second is Legislative Assembly, State Government. Third is Municipality and Municipal Corporation, Cities, Self-Governed Bodies. Fourth is Panchayati Raj, Village. अब हम देखेंगे कहाँ पे किस तरीके की डेमोक्रेसी है. इन यूएसए देयर आर 2 पॉलिटिकल पार्टीज, डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन्स. यूएसए में 2 पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज 2 हैं, डेमोक्रेट्स है और रिपब्लिकन है, जिसमें कि जो ट्रम्प है वो रिपब्लिकन पार्टी से हैं. दे हैव नो सिस्टम ऑफ प्राइम मिनिस्टरशिप. वहां पे प्राइम मिनिस्टरशिप का कोई वो नहीं, सिस्टम नहीं है. इंस्टेड दे डायरेक्टली इलेक्ट देयर प्रेसिडेंट हु इज द हेड ऑफ पावर्स. और वो डायरेक्टली अपना प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं जिसके पास सभी पावर्स रहती हैं. इन इंडिया देयर आर मैनी पॉलिटिकल पार्टीज ड्यू टू मैनी रिलीजन्स एंड कल्चर्स. इंडिया में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं लाइक कांग्रेस, बीजेपी, आरजेडी, बीएसपी, बहुत सारी कुछ रीजन अकॉर्डिंग टू रीजन पार्टीज हैं, जैसे कि समाजवादी पार्टी हुई है या फिर बीएसपी है, क्षेत्रवादी पार्टीज है, और जैसे बीएसपी हुई या फिर कांग्रेस हुई, ये मतलब जो सेंट्रल जो बड़ी पार्टियां हैं वो पार्टीज हैं, है ना. नाउ टाइप्स ऑफ द डेमोक्रेसी. पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी. पार्टिसिपेट इन मेजर डिसीजन मेकिंग एंड दे इलेक्ट देयर गवर्नमेंट. Participatory democracy is a system of democracy in which the members of a group or community participate collectively in the taking of major decisions. Second is decentralized, where power is divided among levels and each level has its own powers and authority, duties, responsibilities. For example, Panchayati Raj. When power is taken away from central and state government and local government is called decentralization. पावर को डिसेंट्रलाइज किया जाता है, यानी कि सेंटर से
नीचे की जो स्टेट लेवल फिर लोकल बॉडीज तक पहुंचाया जाता है, ये इसको क्या कहते हैं, डिसेंट्रलाइज, पावर का डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि जैसे इसके सेंटर में पावर है और फिर इसको स्टेट में, फिर इसके अकॉर्डिंगली ही पंचायती राज का कॉन्सेप्ट आया। और पंचायती क्यों डिसेंट्रलाइज किया गया पावर को, क्योंकि आप फॉर एग्जांपल आप समझ सकते हैं कि अगर आप कोई हिस्टोरिकल प्लेस देखने के लिए जा रहे हैं, तो अगर आप अपने ही सिटी से किसी गाइड को लेके जाएंगे, है ना, तो क्या वो आपको उस हिस्टोरिकल प्लेस के बारे में अच्छी जानकारी दे पाएगा? क्या उसको वो सब चीज मालूम होगी? जितनी ज्यादा वहां के लोकल जो गाइड होगा, आप उसको अगर हायर करेंगे तो वो आपको ज्यादा वहां के बारे में चीजों को बता पाएगा, है ना। तो इसी तरीके से जो गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट ये था कि पावर को डिसेंट्रलाइज किया जा सके, जिससे कि जो लोगों की प्रॉब्लम्स है उसको ग्रास रूट लेवल पे ही सॉल्व किया जा सके, क्योंकि वहां के लोगों की प्रॉब्लम लोकल जो एरिया के जो चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे उस चीज को। इसलिए पावर को डिसेंट्रलाइज किया गया। पंचायती राज 1992 में इसका प्रस्ताव पारित किया गया। Now, core values of democracy. Democracy is not a modern term. It has been there for a long ago. Example of democratic behaviors has been shown in traditional plays and stories and in the epics. It is combination of modern and traditional ideas. In India, democracy is not a modern term. We can see democratic behavior in our traditional plays like Mahabharat, है ना, and it is a combination of modern and traditional ideas. Modern ideas taken from the colonial rule and the traditional ideas taken from the folk stories, epics. Western ideas taken from the books or other countries' example, है ना। Indian National Congress, most powerful party, had session in various places. Karachi session 1931 was crucial because the concept of Purna Swaraj came into being. कांग्रेस उस टाइम की सबसे ज्यादा पावरफुल पार्टी थी और उसने बहुत सारे अधिवेशन जगह जगह पे वो उसने किए, जिसमें से कांग्रेस का वो जो कराची सेशन 1931 में किया गया कराची अधिवेशन, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था उनमें से, क्योंकि उसमें पूर्ण स्वराज का जो कॉन्सेप्ट था वो आया था। ऑल्सो नन एज कराची रेजोल्यूशन इन विच आइडियाज वर पुट टुगेदर एंड later put into the constitution, fundamental rights were taken these ideas. उसे कराची अधिवेशन भी कहा जाता है और उसकी अध्यक्षता किसने की थी? राज्य सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने उसकी अध्यक्षता की थी। और इसमें क्या प्रस्ताव पारित किए गए? इसमें मौलिक अधिकार से संबंधित जो वो थे मौलिक अधिकार थे, उनके विषय में विचार किया गया और बहुत सारी आर्थिक नीतियों के बारे में भी इसमें विचार किया गया। What are the fundamental rights? Some are given here. All religions are equal. Everyone has the right to choose his her religion. सभी रिलीजन जो है इक्वल हैं और सबको अपने अपने अकॉर्डिंगली रिलीजन को चूज करने का अधिकार है। Everyone should be free to elect and vote for his her representatives. Women can also work and can exercise their rights. It is not included in fundamental rights, लेकिन ये इसके बारे में भी विचार उस अधिवेशन में किया गया था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करने का चुनाव में अधिकार है और किसी पे दबाव नहीं बनाया जाएगा। और वुमेन जो है वो भी अपने राइट्स को इक्वली यूज कर सकती हैं। राइट टू फ्रीडम, जस्टिस टू ऑल, सभी के लिए समान न्याय की वो अवधारणा रखी गई और फ्रीडम का, स्वतंत्रता का अधिकार सभी को दिया गया। इसके बाद और कौन कौन से राइट थे? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, और कौन से? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये और फंडामेंटल राइट्स है ना। नाउ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. Constituent Assembly formed to draft Constitution had members from all walks of life. जब Constitution Assembly में Constitution की आधारशिला रखी गई, उस टाइम पे जो मेंबर्स थे वो सभी समाज की सभी तबके से लिए गए।
In 1945-46, Constituent Assembly was formed. People from all sections, religions, caste, language, element groups, reasons were part of it. 1945 और 46 में जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म्ड हुई तो सभी सेक्शंस के, सभी रिलीजन्स के, कास्ट के जो मेंबर्स थे, जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, वो उनको उस ग्रुप में शामिल किया गया. बी आर अम्बेडकर वॉज द हेड ऑफ द असेंबली. बी आर अम्बेडकर हेड थे. देयर वर अ लॉट ऑफ debates on various issues. For example, when Panchayati Raj was suggested, B.R. Ambedkar was against it because there would be more divisions among caste. और बहुत सारे डिबेट्स हुई अलग अलग इश्यूज को लेके. उस टाइम पे जो असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसमें काफी डिफरेंट इश्यूज को लेके डिबेट्स भी हुई. जैसे कि पंचायती राज का जब सजेशन दिया गया तो बी आर अम्बेडकर इसके बिल्कुल विरुद्ध थे. क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कि इससे समाज में जो एक तो कास्ट वाइज डिवीजन है ही, तो ये डिवीजन और भी बढ़ जाएगा. बट पंचायती राज वॉज फॉर्म्ड इन 1902. लेकिन 1992 में पंचायती राज का जो प्रस्ताव था वो पारित हो गया. नाउ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सोशल चेंज. अब कॉन्स्टिट्यूशन तो बन गया, लेकिन उसके अकॉर्डिंगली क्या इंडियन सोसाइटी में चेंज आए, क्योंकि हमारी जो इंडियन सोसाइटी है काफी सारी विविधताओं से भरी हुई है. काफी रिलीजन्स और कल्चर्स डिफरेंट हैं. तो अकॉर्डिंगली क्या किस तरीके से जो ऑब्जेक्टिव्स थे कॉन्स्टिट्यूशंस के, वो कितना जस्टिस कर पाए इंडियन सोसाइटी के साथ, वो देखेंगे. द मल्टी रिलीजियस एंड मल्टी कल्चर. कैसी सोसाइटी है हमारी? मल्टी रिलीजियस, बहुत सारे रिलीजन है, कल्चर अलग अलग हैं. कंपोजिशन ऑफ द पीपल विद distinct streams of tribal culture is one aspect of the plurality. Many divides classify the Indian people. और अलग अलग रिलीजन्स, अलग अलग कल्चर्स हैं, साथ साथ ट्राइबल कम्युनिटी है, वो बिल्कुल अलग है. तो डिफरेंट क्लासेस में जो सोसाइटी है वो बटी हुई है. द इम्पैक्ट दैट कल्चर, रिलीजन एंड कास्ट हैव on the urban-rural divide, rich-poor divide, and the literate-illiterate is very deeply stratified by caste and poverty. There are groupings and subgroupings among the rural poor. और साथ साथ क्या है, कल्चर रिलीजन तो अलग है ही, साथ साथ कास्ट में बटी हुई है. अर्बन और रूरल एरियाज में लोग रहते हैं, पुअर हैं लोग, रिच हैं, लिटरेट इलिटरेट हैं. साथ ही साथ कास्ट में बटे होने के साथ पॉवर्टी, निर्धन है. निर्धन भी कैसे? निर्धन लोग होते के साथ साथ भी उनके भी ग्रुप्स हैं. ग्रुप्स के भी सब ग्रुप्स में जो रूरल पुअर पीपल हैं वो भी ग्रुप्स के साथ सब ग्रुप्स में बटे हुए हैं. तो इस तरीके की डाइवर्सिटी के साथ जो हमारी इंडियन सोसाइटी है उसमें किस तरीके से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके ऑब्जेक्टिव्स किस तरीके से न्याय कर पाते हैं. इसमें बुक है आपकी ये एनसीईआरटी की. इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा है ना, मध्य प्रदेश ट्राइबल्स प्रोटेस्ट अगेंस्ट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट. किसके प्रोटेस्ट अगेंस्ट वो कर रहे हैं? ये प्रोटेस्ट अगेंस्ट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट. क्यों कर रहे हैं वाइल्ड लाइफ? क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन में ये किया गया है कि वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन करना है, कि जो जानवर हैं वो खत्म हो रहे हैं तो उनको प्रोटेक्ट करना है. लेकिन क्योंकि जो आदिवासी लोग होते हैं वो कहाँ पे रहते हैं? वो तो जंगलों में रहते हैं और जंगली जानवरों को खाते भी हैं. तो और जिनको वो खाते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कहा गया है. तो फिर ये इसके अगेंस्ट उन्होंने क्या प्रोटेस्ट करना शुरू किया. जो मध्य प्रदेश की ट्राइबल जनजातियां थी, है ना, तो वो जो कॉन्स्टिट्यूशन से लॉ बनाया वो उनके अकॉर्डिंगली फिट नहीं बैठता था, तो उन्होंने उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया. सेकंड आप देख सकते हैं, बैन ऑन एम्प्लॉइंग चिल्ड्रन. मतलब बच्चे जो हैं इनको आप काम नहीं दे सकते, काम पर नहीं रख सकते हैं बच्चों को. ये बैन है अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन. बट क्या आप ऐसे परिवारों को नहीं जानते हैं जिनमें कोई कमाने वाला नहीं है, तो उन बच्चों को ही वर्क करना पड़ता है. और अगर उन्हें काम पे नहीं रखा जाएगा तो फिर उनका घर किस तरीके से चलेगा? तो ये उन लोगों के लिए प्रॉब्लम है. तो इस चीज को भी मतलब हम कह नहीं सकते कि इन लोगों के साथ इसमें न्याय हुआ. ठीक है ना. नाउ कंपैटिंग इंटरेस्ट रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्टिव्स. Competing interests do not always reflect a clear class divide. It is not related to the particular class. For example, take the issues of close down of a factory because it emits toxic waste and affects the health of those around. This is a matter of life which the constitutions project.
किसी भी फैक्ट्री को बंद करने के लिए रीजन ये है कि उससे निकलने वाला जो कचरा है वो वहां पे रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए, उनकी हेल्थ के लिए हार्मफुल है, और दिस इज द मैटर ऑफ लाइफ, ये मैटर ऑफ लाइफ है, इसलिए विच इज द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोजेक्ट, इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोजेक्ट है, और उसकी संविधान वहां के रहने वाले नागरिकों की जो सुरक्षा है उसको सुनिश्चित करता है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोजेक्ट है. सेकेंड एग्जाम्पल इज फ्लिप साइड इज दैट द क्लोजर will render people jobless, livelihood again is the matter of life, that the constitutional project. अगर कोई भी व्यापार अगर बंद होता है तो उसमें जॉब करने वाले व्यक्ति जो होते हैं वो जॉबलेस हो जाते हैं, अगेन ये एक लाइवलीहुड का मैटर है और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोजेक्ट है. तो ये एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और आश्चर्यजनक या फिर सूझबूझ से भरा हुआ हम इसको कह सकते हैं कि संविधान के जो निर्माता हैं, संविधान निर्माण के समय उन्हें पता था कि हमारी जो कंट्री है वो उसमें कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी या कॉम्प्लेक्सिटी है, इसके बारे में वो पूरी तरीके से अवेयर थे. लेकिन तब भी उनका उद्देश्य क्या था? उनका उद्देश्य ये था कि लोगों को गारंटी के साथ न्याय दिलाया जाए, है ना. लॉ एंड जस्टिस अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, द एसेंस ऑफ लॉ इज इट्स फोर्स. लॉ इज law because it carries the means of coerce or force, obedience, the power of the state behind it. तो जो लॉ होता है वो अपने पीछे एक फोर्स लेके चलता है ना, कि अगर आपने ये नहीं किया तो आपको पनिशमेंट मिलेगा. जैसे लॉकडाउन पीरियड में शॉप्स बंद हैं, आप बाहर नहीं जा सकते हो, लेकिन अगर जो जा रहे हैं बाहर उनको क्या हो रहा है, पुलिस के द्वारा उनकी पिटाई की जा रही है, उनको पनिशमेंट मिल रहा है. या अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो उसके लिए परमिशन लेनी पड़ रही है आपको, है ना. तो लॉ इज लॉ बिकॉज इट कैरीज द मीन्स ऑफ कोरस और फोर्स. इसके पीछे क्या है, आपको फोर्सली ये मनवाया जाता है कि आपको ऐसा ही करना है, और इसके पीछे किसकी पावर होती है? स्टेट की पावर होती है ना. Essence of justice is fairness. Any system of laws function through a hierarchy of authorities. Essence क्या है जस्टिस का? It is fairness. Any system of laws function. जो laws function किसके थ्रू करता है? Hierarchical authority system के अकॉर्डिंग. हायरार्की सिस्टम सबसे पहले सबसे उच्च जो पोस्ट पे अधिकारी बैठा हुआ है, फिर उससे नीचे जो अधिकारी है, फिर उससे नीचे जो अधिकारी, इस तरीके से हायरार्की सिस्टम चलता है. द बेसिक नॉर्म फ्रॉम विच ऑल अदर रूल्स एंड अथॉरिटीज फ्लो इज कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन. और जो बेसिक नॉर्म्स हैं जहां से रूल्स और अथॉरिटीज फ्लो होती हैं, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन. Hierarchy of courts interpret the laws when there is a dispute. The Supreme Court is the highest court and the ultimate interpreter of the Constitution. जो कोर्ट्स का जो उपक्रम होता है, हायरार्किकल उपक्रम जो होता है, वो किसी भी डिस्प्यूट में संविधान के नियमों की व्याख्या करता है. और सुप्रीम कोर्ट इस हायरार्की सिस्टम में जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो सबसे ज्यादा हाई होता है ना. जैसे कि उसमें सबसे पहले कौन सी वो होती है कोर्ट? लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर उसके बाद सबसे ज्यादा हाईएस्ट लेवल पे होता है सुप्रीम कोर्ट. एंड द अल्टीमेट इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. और इसी के द्वारा संविधान के नियमों की व्याख्या की जाती है. The Supreme Court has enhanced the substance of fundamental rights in the Constitution in many important days. और सुप्रीम कोर्ट को ही ये है कि वो कुछ महत्वपूर्ण दिनों में फंडामेंटल राइट्स को इनहेंस कर सकता है, जैसे कि हम कह सकते हैं राइट ऑफ प्राइवेसी. सो टुडेज लेक्चर इज ओवर नाउ. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द पंचायती राज सिस्टम. ओके, जय हिंद स्टूडेंट्स, बाय बाय.